10 سال بعد وہ واقعہ رونما ہو رہا ہے کہ جس نے اس وقت پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ MQM لندن کے اندر ایک بڑی انٹری اور گزشتہ 10 سالوں کے بعد یہ بڑی واپسی ہو رہی ہے۔ کس کی واپسی ہوئی ہے اور یہ گھر واپسی کی پریس کانفرنس جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک ہو چکی ہوگی۔ ایک بہت بڑی انٹری کے بعد پھر کیا ہوا یہ ضرور بتاؤں گا۔ MQM کے بہت زیادہ الطاف حسین کے بہت زیادہ قریب اور بہت زیادہ ملاقاتیں کرنے والی ایک خاتون کا کیا کہنا ہے، یہ سامنے آ رہا ہے ایک بڑا انکشاف۔ تحریک انصاف نے کراچی کے معاملے پر ایک بہت بڑا یو ٹرن لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو کراچی ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری قرار نہ دی جائے، سندھ کی تقسیم نہ ہو، اور یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف جو پاکستان پیپلز پارٹی کی شدید مخالف رہی، اس نے کراچی کے معاملے میں کراچی کو صوبہ بنانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کر دی ہے۔ یہ ایک اہم راز اور ایک اہم بیان آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ کڑی ہوگی تو اس کے لیے تحریک انصاف بھی ان سے بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ جو کراچی ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری قرار نہ دی جائے، سندھ کی تقسیم نہ ہو۔ پنجاب میں ایک تحریک نے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں صوبہ نہیں بنے گا۔ حیرت انگیز طور پر وہ تمام ویلاگرز اور وہ پنجاب حکومت کے چہیتے جو کراچی کو صوبہ بنانے کی حمایت پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت میں کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن جہاں بلاول بھٹو نے یہ بیان دیا وہاں پر اب پنجاب کی تقسیم نہ کرنے اور اس حوالے سے ایک بہت بڑی بات سامنے آ رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے آج کے پروگرام میں آپ کو میں بڑا راز بتانے والا ہوں۔ بلاول نے کراچی دینے سے صاف انکار کر دیا، اور کیا واقعی میں بلاول نے کراچی دینے سے انکار کر دیا یا پھر آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھ رہا ہے اسی طرف، اور کیا ماحول بن چکا ہے؟ یہ بات کس نے کہی ہے اور اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ مفاہمتی یادداشت بالکل تیار ہو گئی ہے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت میں اس وقت کیا اہم کردار ادا کر لیا ہے اور اس وقت یہ معاملہ کس جگہ پر پہنچا ہے، وہ میں ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو آپ سب کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ ان تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے۔ وہ تمام خبریں جو تمام لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں جب آپ کی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پھر ڈریے نہیں، جھجکے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ آپ کا ہاتھ تیزی کے ساتھ اس طرف بٹن کی طرف جانا چاہیے کہ جہاں پر سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اور یہی آپ کی کامیابی ہوگی کہ آپ کو سچ ملتا رہے گا، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ چینل ضرور دیکھتے رہیے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ 10 سال کے بعد MQM لندن، MQM الطاف حسین گروپ، وہ گروپ کے جس نے 22 اگست 2016 کو وہ تقریر کی تھی جس کے بعد MQM سے جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، بلکہ اگر یہ لفظ کہا جائے کہ MQM پوری کی پوری خالی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے، اس سے چند ماہ پہلے PSP کا فیکٹر بن چکا تھا اور MQM کی لیڈرشپ اور MQM کی نیچے کی قیادت کی ایک بڑی تعداد کارکنان کی PSP میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد 22 اگست کا واقعہ رونما ہوتا ہے اور 22 اگست 2016 کے دن جب الطاف حسین کی تقریر سامنے آتی ہے، اس کے فوری کے بعد MQM پاکستان کا وجود عمل میں آتا ہے اور پاکستان کے اندر موجود MQM مکمل طور پر اپنی لیڈرشپ سے علیحدگی کا اعلان کر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جس کے بعد MQM لندن یا الطاف حسین کے لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں سے ان کی جماعت سے نکلنے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ خاص طور پر MQM لندن کے اندر، یعنی کہ لندن کے اندر موجود گروپ بھی الگ ہو جاتا ہے کہ جس میں ندیم نصرت اور اس کے بعد واسع جلیل صاحب کا بھی نام سامنے آتا ہے۔ مگر ان 10 سالوں میں MQM لندن سے نکلنے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، مگر اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد نہیں ہو رہی تھی۔
थी। 10 साल के बाद अब ये हुआ है कि एमक्यूएम लंदन ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से चंद घंटों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इब्तदाई तौर पर इससे इनकार किया गया, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि एक बहुत बड़ा नाम कि जो कि लंदन के अंदर ही मौजूद था और जो बाद में अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदा हुआ था, मगर अब वो दोबारा से एमक्यूएम लंदन में शामिल हो रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल हो रहा है और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, ये मैं प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चंद बड़ी खबरें आपको देने वाला हूं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बात को गूंज रही है, और ये बात इसलिए गूंज रही है कि जनाबे वाला कराची को सूबा बनाने और कराची को वफाक के हवाले कर देने के हवाले से बात ज़ेर बहस आ रही है। क्या इसमें हकायक मौजूद हैं? और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र करने वाला हूं आगे चलकर, जिसमें एमक्यूएम लंदन में शमूलियत की, उसी का सिलसिला इस वाली गुफ्तगू से कैसे जुड़ेगा। हमेशा ऐसा मामला क्यों होता है कि जब कभी भी बजट का मामला बहुत ज्यादा करीब आता है, जब कभी भी ये मामला सामने आ रहा होता है कि कोई बहुत बड़ी तरमीम करनी है, उससे पहले ही हमेशा कराची को सूबा बनने की बात या कराची को वफाक के हवाले करने की बात क्यों होती है। जुमला ये बात ज़हर बहस है, क्या पाकिस्तान की मुक्तदरा कुव्वतें और पाकिस्तान की मुक्तदरा सियासी जमातें इस हवाले से मुत्तफिक हैं कि वो कराची को सूबा बनाना चाहती है, या फिर हमेशा एनएफसी के मामलात हों या फिर बजट के मामलात हों, उसी वक्त ये बात ज़ेर बहस क्यों आती है। ये सवाल बहुत ही अहम है कि आखिर ये तमाम बातें पूरा साल सामने नहीं आती, इसके लिए बाकायदा कोशिश क्यों नहीं की जाती। ये पाकिस्तान में अगर सूबे की तश्कील करनी है तो उसके लिए जरूरी बात यह कि उस सूबे की सूबाई असेंबली इस हवाले से 2/3 अक्सरियत से कबूल करे कि जनाब हमें अब सूबा बनाना है। अब कराची के अंदर अगर सूबा बनाना है तो सिंध असेंबली की 2/3 अक्सरियत को इस हवाले से फैसला देना होगा, और फिर यह फैसला अगर होता है तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार हो, क्योंकि यहां पर अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये आइन के पेचीदा अमल की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस अमल की हिमायत नहीं करेगी, तो इसका मतलब तो ये वाज़ेह हो जाता है कि कराची को सूबा बनाने के हवाले से सियासी जमातें एक नुक्ते पर नहीं है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब जहां अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की है, वहीं जहां खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर मौजूद है, जिसे पहले तहरीक इंसाफ देखना तक पसंद नहीं करती थी, अब हर जगह उसके साथ नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान कर दिया है, और उसने कहा है कि यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ बहुत ही जिम्मेदाराना और बहुत ही अच्छा है। जहां पर तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रही है, वहीं पर वो ये बात भी कह रही है कि कराची को सूबा नहीं बनना चाहिए। कड़ी होगी, तो इसके लिए तहरीक इंसाफ भी उनसे बात कर रही है, क्योंकि वो भी ये चाहती है कि जो कराची है वो फेडरल टेरिटरी करार ना दी जाए, सिंध की तकसीम ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ भी इस मामले में यहां पर हिमायत में नहीं है। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर ये बात कौमी सूबाई असेंबली के अंदर आती है तो 2/3 अक्सरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक ही जगह पर खड़ी हुई नजर आएगी। मामला यहां तक नहीं रहता है। तो मेरा सवाल जो हमारा बुनियादी सवाल था, तो फिर जब यहां पर सियासी कुव्वतें एक नहीं है तो फिर सूबा किस तरीके से बन सकता है, या फिर वफाक के हवाले कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के निजाम को जो लोग जानते हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि अगर पाकिस्तान में मुक्तदरा कुव्वतें या जिसे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट कहा जाए, तो अगर वो चाहे तो तमाम चीजें हो सकती है। पाकिस्तान की सियासी जमातें तमाम की तमाम वहां की बात को हमेशा अहमियत देती है, और वो समझती है कि शायद वहां की बात को मानना ही चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट कानून के इस अमल की पेचीदगी को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हद तक मजबूर कर सकती है कि जनाब वो सूबे की बात करें? सवाल यहां पर ये बहुत ज्यादा अहम है। कुछ सहाफियों ने, खास तौर पे मुबश्शिर लुकमान जैसे लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी, क्योंकि ये तरमीम इस तरीके से होती हुई नजर नहीं आती है, तो हो सकता है कि अगस्त में इस पर रेफरेंडम हो। मगर सवाल यह है कि बात कही जा रही है कि बजट से पहले पहले आईनी तरामीम आएगी और उसमें सूबे की तश्कील का फार्मूला होगा। मगर
मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यह बयान जारी हुआ कि पहले पंजाब में सूबा बनाया जाए। जब पंजाब में सूबे की बात आना शुरू हुई है तो अब एक पंजाब के अंदर नई तहरीक का आगाज हुआ है। पंजाब के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से ये बात चलाई जा रही है कि जो करारदाद वहां पर पास हुई थी, यानी कि पंजाब असेंबली से जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है, लेकिन आज तक पंजाब की तकसीम नहीं हो सकी है। तो वहां पर अब ये तहरीक चल रही है और मैं आपको बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और आर्गुमेंट दिखा सकता हूं कि जिसमें ये दरख्वास्त की जा रही है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस हवाले से एक्शन ले और वो जो करारदाद पास हुई थी उसे नलीफाई करे और उसकी काउंटर में करारदाद लाए। यानी कि पंजाब के अंदर अब ये तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे के बाद ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है कि पंजाब के अंदर अब सूबा नहीं बनना चाहिए और बात यहां तक आ गई है कि उस करारदाद को रिवर्स करने की बात हो रही है। ये मामला, इसकी संगीनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि दर हकीकत ये दो सियासी जमातों के इख्तलाफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सूबे की हिमायत करती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालफत करती है। इसी मुखालफत की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की निचली क़यादत बराह रास्त कराची को सूबा बनाने और वफाक के हवाले करने की बात करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती है। मसला ये होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों एक दूसरे की मुखालफत करते हैं तो दोनों ये नहीं चाहते कि सूबों की तश्कील हो, तो फिर यह बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कराची को सूबा बनाने के हवाले से संजीदा नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव डाल रही है। बारहा ये कोशिशें गुज़िश्ता 25-30 सालों से बार बार ये जिक्र होता रहता है। परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में बाकायदा ये तहरीक चली कि कराची को अलग सूबा बनाया जाए, पंजाब को तकसीम किया जाए, वो नहीं हो सका। जरदारी साहब के जमाने में चली और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब के जमाने में तो नौबत यहां तक आई कि बाकायदा पंजाब के अंदर करारदाद मंजूर हुई। मगर क्या बात है कि इसी बजट के दौरान होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम के जरिए सूबों में जो इख्तियारात है वो मौजूद ज्यादा है और वफाक के पास इख्तियारात कम है। वफाक ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा माली असर रसूख उसके पास हो और उसी हवाले से हमेशा कराची को सूबा बनाने या पंजाब को तकसीम करने की बात का सिलसिले का आगाज होता है और उसके बाद एक पॉलिटिकल बार्गेन होता है या फिर एक इकोनॉमिकल बार्गेन होता है और उस इकोनॉमिकल बार्गेन के बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। तो पंजाब या फिर कराची को सूबा बनाने के हवाले से कोई हतमी नतीजा नहीं होता। इस बार भी माहिरीन का ख्याल यह है कि यहां पर एनएफसी के हवाले से बारगेन तो जरूर किया जा रहा है और उसमें कराची सूबे के हवाले से इसे एक टोल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या पंजाब को सूबे के हवाले से एक टोल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर इसमें कोई हतमी कोशिश नजर नहीं आ रही है। बात यहां तक नहीं रही है। अब इसी सिलसिले की कड़ी को देखिए कि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने बार बार 18वीं तरमीम के फायदों का जिक्र किया और जहां पर उन्होंने 18वीं तरमीम के फायदों का जिक्र किया वहीं पर उन्होंने एनक्यूएम पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद की और मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इसकी पूरी वजह आपके सामने रखी थी। वहीं पर उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब का बार बार जिक्र किया। अल्ताफ हुसैन साहब का बार बार जिक्र कर कर वो ये बताते रहे कि एनक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की है और जाहिर है पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों में अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बेहतर राय वो नहीं रखते और अभी तक उनकी अल्ताफ हुसैन साहब की एनक्यूएम के साथ कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर उनकी जमात को यहां पर काम करने की इजाजत मिल सके। और यही वजूहत थी कि 2016 के बाद से उनके यहां पर मुसलसल पाबंदी का सिलसिला रहा और 2016 तक से लेकर अब तक उनकी जमात से लोगों के जाने का खराज हुआ। मगर आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 23 तारीख और अमेरिका के वक्त के मुताबिक अब से जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 5 घंटे के बाद एक बहुत बड़ी एंट्री होने वाली है और ये एंट्री किसी और की नहीं हो रही। किसी जमाने में एनक्यूएम की जमात में और तंजीमी सुतूनों में अगर एक बड़ा नाम लिया जाता था तो वो लिया जाता था वासे जलील का। वासे जलील का वैसे तो ताल्लुक एपीएमएसओ से था, वो एपीएमएसओ के चेयरमैन भी रहे, खालिद मकबूल सिद्दीकी के बाद उसके चेयरमैन भी रहे, उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां तब्दील हुई, वो मीडिया हाउसेस को देखते रहे और फिर एक जमाने में वो गुलशन टाउन के नाजिम रहे। जब यहाँ पर हालात खराब हुए तो उन्हें बाकायदा लंदन बुलाया गया और उन्हें लंदन में तमाम तर अहम जिम्मेदारियां दी गई। ये वो शख्स थे कि जो लंदन के अंदर मौजूद थे। एनक्यूएम लंदन जब 22 अगस्त 2016 हुआ तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर दबाव कह लीजिए या फिर अपनी पसंद के लीजिए की वजह से अल्ताफ हुसैन का साथ छोड़ा और इसी तरीके से लेकिन लंदन से सिर्फ चंद लोगों ने उनका साथ छोड़ा। जिन लंदन में चंद लोगों ने साथ छोड़ा उसमें अहम नाम नदीम नुसरत का था जिन्होंने वॉइस ऑफ कराची बनाई और फिर वहीं पर कराची की आवाज उठाने के लिए
वासिफ जलील उनके साथ ज्वाइन हुए। वासिफ जलील उन तमाम जमातों का हिस्सा नहीं बने कि जिन्होंने जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान हो या पीएसपी हो, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बाकायदा तहरीक भी चलाई, मगर उनकी एंट्री नहीं थी। अब उनकी एंट्री हो रही है और बाकायदा हमारी बाकायदा एक जादूगरनी की इतला के मुताबिक वासिफ जलील एमक्यूएम लंदन में दोबारा शामिल होने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी और कंफर्म खबर दे रहा हूं, आप ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखेंगे। यहां पर वासिफ जलील बाकायदा सहाफियों से गुफ्तगू करेंगे, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी वहां पर मौजूद होगी और वासिफ जलील कई बातें करेंगे, जिसमें से एक अहम नुक्ते पर जब वो गुफ्तगू करेंगे तो उन्होंने कहा था कि दर हकीकत उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और वो एमक्यूएम लंदन को या अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़कर सिर्फ इस वजह से गए थे कि वो कराची के लिए एक बात कर सके और कभी भी उनका ताल्लुक या उन्होंने एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं कही, जैसे एमक्यूएम के बहुत से रहनुमाओं ने गुफ्तगू की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो एक और बात का भी बहुत ज्यादा ऐलान करेंगे और ये बात कहेंगे कि पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों को और पाकिस्तान के अहम ताकतवर लोगों को अल्ताफ हुसैन साहब को सियासत में करने की इजाजत होनी चाहिए और वो अपनी 22 अगस्त वाली तकरीर पर कई बार माफी मांग चुके हैं, तो अब सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर सवाल ये बनता है कि ये शमूलियत किस हद तक एमक्यूएम लंदन के अंदर नई जान फूंक सकती है, क्या इसकी बुनियाद पर उन्हें एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम की तरह यहां पर काम करने की इजाजत मिल सकती है? तो जवाब होगा नहीं, अभी इब्तदाई तौर पर यह मुमकिन नहीं। वासिफ जलील साहब के ताल्लुकात बहुत होंगे, लेकिन वो एक अरसे से अमेरिका के अंदर मुकीम है और वो वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वो एक नई जान डालने में कामयाब हो सकेंगे और उनके पाकिस्तान के अंदर मौजूद रवाबित क्या बहुत सारी चीजों को आसान कर सकेंगे? तो ये बातें कहना इब्तदाई मरहले पर बहुत ही इनिशियल तौर पर बहुत ही ज्यादा इसको तज्जिया करना, इन चीजों को समझना इब्तदाई तौर पर मुश्किल होगा। लेकिन एक बहुत अहम ताल्लुक, एक बहुत अहम नाम शमा जुनेजो का है। शमा जुनेजो साहिबा एक बड़ी सहाफी भी रही हैं, इस वक्त कई अहम इंटरनेशनल ओहदों पर फाइज रही है और उनका सहाफत और खासतौर पर पाकिस्तान की सियासत से बड़ा गहरा राब्ता रहा है। उनकी अल्ताफ हुसैन साहब से बराह रास्त कई मुलाकातें भी रही हैं और शमा जुनेजो ने पिछले दिनों इस खबर के बाद एक नया तबसरा किया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब का नाम बार बार लेकर क्यों कर अल्ताफ हुसैन की सियासत को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की है और क्या वजह है कि दोबारा से सियासत 1980 और 90 की दहाई की तरफ जा रही है। वासिफ जलील की नई एंट्री पर उन्होंने कहा कि लोग एक बार फिर क्यों अल्ताफ हुसैन साहब को ज्वाइन कर रहे हैं, मगर सवाल यह बनता है कि इससे क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को या फिर पीएसपी फैक्टर को कोई बड़ा धचका लग सकेगा? तो ये इब्तदाई तौर पर मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि वासिफ जलील साहब का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं था और वो तंजीमी स्ट्रक्चर के हवाले से भी उनसे वो वाबस्तगी या उनका ताल्लुक उस तरीके से नहीं रहा है। ये हो गई अब तक की बड़ी अहम खबर, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर हो रही है और ये खबर इतलात आ रही है और इस्लामाबाद में हमारे कुछ दोस्त सहाफियों ने मुझे ये इतलात दी है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और मोहसिन नकवी जो वहां पर मौजूद थे ईरान के अंदर, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मफाहमती यादाश्त को फाइनल शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है और अब ईरान के वजीर खारजा के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का यह बयान सामने आया है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में एक मफाहमती यादाश्त को फाइनल शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान के खास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर ईरान का ट्रस्ट और उसके साथ साथ अमेरिका का ट्रस्ट, यानी कि दोनों मुमालिक की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान ने दर हकीकत अगर कोई सालिस है, अगर दुनिया में कोई इन दोनों मुमालिक के दरमियान सालिस है तो वो पाकिस्तान है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान अगर सालिस का कोई किरदार अंजाम दिया जा रहा है तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से ही दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है। आज बाकायदा इस्माइल बकाई का यह बयान कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां पर मौजूद है और मफाहमती यादाश्त को फाइनल शक्ल दे रहे हैं, ये बात वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ही अमेरिका और ईरान के दरमियान चीजें हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगी और इसमें पाकिस्तान का किरदार बढ़ेगा। मगर
सवाल साथ साथ ये भी बन रहा है कि इस सारे मामलात में पाकिस्तान जहाँ सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान आइंदा दिनों के अंदर अपनी मईशत के हवाले से क्या बड़े फैसले कर सकेगा। और इसी मईशत के बड़े फैसलों के हवाले से NFC अवार्ड और फिर 2026 का बजट सामने रखा हुआ है। और इसी हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि उनके हवाले से कराची के हवाले से बात की जा रही है, बल्कि दर हकीकत मामला यह है कि वहीं पर NFC के हवाले से और आइंदा दिनों के अंदर माशी तौर पर भी फैसले किए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जैसे ही मामला फाइनल शक्ल इख्तियार करेंगे, पाकिस्तान के मुक्तदरा हल्के और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर बड़े अहम फैसले करने जा रही है। और यही फैसले वो है कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मद्दे मुकाबिल सामने खड़ी हो सकती है। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझ रही है और यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ बढ़ाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची को सूबा ना बनाने के हवाले के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है। तो आपको इस बजट के बिल्कुल यानी कि जून के महीने में जहां नए अलायंसेस नजर आएंगे, वहीं पर आपको माशी हवाले से और इंतजामी हवाले से बड़े फैसले सामने आने वाले हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग ये इशारे भी कर रहे हैं कि क्या एमक्यूएम के अंदर एक बार फिर जान डालने की इसलिए कोशिश हो रही है या फिर की जा रही है या फिर हो चुकी है कि जनाब आइंदा दिनों के अंदर बड़ा मार्का लगने वाला है। खबर यहीं तक नहीं है, कुछ और खबरें भी मेरे पास हैं, लेकिन वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त है। अभी के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के बाद।